Hello students, welcome back to my channel EduHo with Pinky. I have made this video to explain you about nouns. Noun is first part of speech. Nouns. Definition of nouns. Noun is the name of a person, animal, place or a thing. Noun किसी व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम, स्थान का नाम या फिर किसी चीज़ का नाम है. और a noun is a naming word. नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं. एग्जाम्पल 1. राम इज़ अ गुड बॉय. राम अच्छा लड़का है. राम इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन एंड पर्सन इज़ अ नाउन. सेकेंड एग्जाम्पल. वी विल गो टू जयपुर. हम जयपुर जाएंगे. जयपुर इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस एंड प्लेस इज़ अ नाउन. थर्ड एग्जाम्पल. The little girl was playing with her dog, Kasar. Little girl अपने डॉग के साथ खेल रही थी. उसके डॉग का नेम है कासर. Dog is a animal and animal is a noun. Fourth example. This knife is sharp. ये knife sharp है. Knife is a name of a thing and thing is a noun. Types of noun. There are 5 types of noun. Proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. Proper noun. It is the name of a person, an animal, a place or a thing in particular. Proper noun किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष जानवर या किसी विशेष प्लेस या किसी विशेष चीज़ का नाम है. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ओशन, लोटस टेम्पल, रामायण. प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. एग्जाम्पल 1. आई हैव रेड द रामायण. मैंने रामायण पढ़ी. रामायण इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर होली बुक एंड होली बुक इज अ थिंग. So Ramayan is a proper noun. Second example. Delhi is a big city. Delhi बड़ा शहर है. So Delhi is a name of a particular place. So Delhi is a proper noun. Third example. Dolly was feeding the birds. Dolly ने birds को खाना खिलाया था. So Dolly is a name of a particular person. So Dolly is person, proper noun. Fourth example. The Ganga is a holy river. गंगा एक पवित्र नदी है. Ganga is the name of river and river is in place. So Ganga is proper noun. I remind you again, all proper noun begin with capital letter. Common noun. Common nouns are general names for people, animals, places and things. Common noun किसी सामान्य person, किसी सामान्य जानवर, किसी सामान्य स्थान, किसी सामान्य चीज़ का नाम है. Like book, home, door, policeman, etc. Example 1. Birds live on trees. Birds ट्री पर रहती हैं. Birds, they didn't mention the particular name of bird like sparrow, parrot, peacock, etc. So it is a general name. So this is common noun. Trees. So in this also they didn't mention the common name like banyan tree, apple tree, mango tree. So this is general name. This is in common noun. Second example. I love to read story books. मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है. They didn't mention the particular name of story books. It is general name. So this is in common noun. Third example. This chocolate is very delicious. ये चॉकलेट बहुत ज़्यादा delicious है. They didn't mention the brand of chocolate. So this is general name. So this is in common noun. Collective noun.
Collective nouns are used to name a group of persons, places, animals or things. Collective noun किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या किसी चीज़ के समूह को बताने में प्रयोग होता है. Examples. First example, a herd of cattle. जो herd word है वो कैटल के ग्रुप को बना रहा है, उसका समूह बता रहा है. तो herd हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन. सेकेंड एग्जाम्पल, अ क्लास ऑफ पीपल्स. क्लास वर्ड जो है ये पीपल के समूह को बता रहा है. सो क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन. थर्ड एग्जाम्पल, अ गैंग ऑफ रोबर्स. रोबर्स की गैंग में बहुत सारे लोग होते हैं. तो जो रोबर्स है उनकी गैंग को, जो गैंग वर्ड है वो रोबर्स किसको हमारे बता रहा है कि गैंग है रोबर्स की, उनका झुंड है. तो गैंग हो गया कलेक्टिव नाउन. फोर्थ एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ ग्रेप्स. ग्रेप्स का गुच्छा. तो वो बता रहा है कि जो ये बंच है इसमें बहुत सारे ग्रेप्स हैं. तो ग्रेप्स मतलब उनका ग्रुप ही हो गया कि वो बहुत सारे हैं, इकट्ठे हैं. तो जो ये है ये भी हो गया कलेक्टिव नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इट इज़ अ नाउन दैट वी कैन नॉट सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ है जिसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते और टेस्ट नहीं कर सकते. लाइक ट्रुथ, चैरिटी, सरप्राइज, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द रिफ्यूजेस लिव इन पॉवर्टी. तो जो रिफ्यूजेस हैं वो गरीबी में रह रहे हैं. तो जो उनकी पॉवर्टी है वो हम फील कर रहे हैं कि हाँ भाई वो गरीबी में रह रहे हैं. ना हम उसे टच कर सकते, ना हियर कर सकते, ना स्मेल और ना टेस्ट. तो जो इसकी पॉवर्टी है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सेकेंड एग्जाम्पल, मिसिस दास वोन आवर हार्ट्स विद हर काइंडनेस. जो मिसिस दास है उन्होंने हमारा दिल जीत लिया अपनी काइंडनेस से. तो जो उनकी काइंडनेस है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम काइंडनेस को केवल फील कर सकते हैं. थर्ड एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर हैप्पीनेस. तुम्हारी हैप्पीनेस का क्या कारण है. तो जो उसकी हैप्पीनेस है हम उसे फील कर सकते हैं. तो ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन्स are words that stand for the matter or substance of which things are made. जिस नाउन से किसी मटेरियल का बोध होता है या जिसे नापा और तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, उसे क्या बोलेंगे. या वह पदार्थ जिसे चीज़ें बनाई जाती है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं. लाइक आयरन, वुड, गोल्ड. एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल, द फार्मर कट द ट्री फॉर इट्स वुड. जो फार्मर है उसने ट्री को काट दिया उसकी वुड के लिए. तो जिस पदार्थ के लिए फार्मर ने ट्री को काटा है वो है वुड. तो वुड क्या हो गया यहाँ पे मटेरियल नाउन. सेकेंड एग्जाम्पल, अनीता वॉन्टेड टू बाय सम ज्वेलरी इन गोल्ड. अनीता जो है वो ज्वेलरी खरीदना चाहती है गोल्ड में. तो वो जिस पदार्थ में ज्वेलरी खरीदना चाहती है वो पदार्थ है गोल्ड. तो गोल्ड हो गया मटेरियल नाउन. थर्ड एग्जाम्पल, क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, वूल एंड सिल्क. जो क्लॉथ्स हैं वो कॉटन, वूल और सिल्क के बने हैं. तो जो क्लॉथ्स हैं वो बता रहा है कि किन किन पदार्थों के बने हैं. तो वो पदार्थ हैं कॉटन, वूल और सिल्क. तो कॉटन, वूल और सिल्क हो गया हमारा मटेरियल नाउन. Thank you for watching my video, and don't forget to like and subscribe my channel and share this video with your friends, sisters and brothers.